My greetings to the Sri Mata Vaishno Devi University family on 20th Foundation Day. It is indeed a pride and great sense of joy for me as a Chancellor to be with you here today. The university has nurtured the students, served the knowledge economy of the country with great distinction and aspires to empower the young generation. We are celebrating the Foundation Day at a time when scientists, academicians, and thinkers both from global north and global south are redefining the education and its objectives. I have been following this development with great interest for last many years, but I have seen the debate getting intensified after the explosion of new technologies which your Vice Chancellor referred to, like artificial intelligence, data analytics, IoT, which is changing the way we collect, process, and utilize the knowledge for a better world. Deliberations are also happening on what is professional worth of a university in the nation's growth. I see it is a good sign because it is high time we realize that institutions worldwide are aiming for global excellence and competitive advantage. The traditional learning process and education that we have known for many decades will no longer exist in the future. I would also like to say that in this churning and quest for transformation, we would also go back to from where it all had started, the basic definition and purpose of education. Sa vidya ya vimukta. Knowledge is that which liberates. World over, this is the only true and authentic definition of knowledge, and even institutions in the Western world are in the agreement that knowledge must help the students to attain the liberation. But there is one question, liberation from what? I believe the liberation in this context is not about shackles in physical sense, but from all the conditioning of classrooms, curriculum, and the fixed frame of learning. The liberation means to discover your true self, the individuality, the uniqueness within you. Today, there is enormous information and knowledge available on your fingertips. You just need to tap your smartphone. A student will get to know certain things faster than turning the pages. In that situation, the institutions will have to recalibrate, reform, and readjust themselves to return to the spirit of Sloka of Vishnu Puran and adopt the same wisdom which is the foundation of education. And this recalibration will liberate students from conventional academic content, disciplines, and train them with the skills and ability to succeed in the uncharted future. एक हिंदी की पुरानी कहावत है कि जिंदगी की समृद्धि का रास्ता गुरुकुल से होकर गुजरता है। वह समृद्धि क्या है? इंद्राग्नि तविषाणी, the light of intelligence, the strength, the power. Education awakens the mind. It offers the ability to question the status quo, and question sows the seed of growth. If we talk about traditional education system, it is equally true that teachers are not in favor of too many questions in the classrooms. They want students to believe what he or she is saying. That is not the education. In fact, such methods are anti-education. It only creates memories, it only makes a student a storehouse of information, and it also creates huge gap in what university offers, what world and market demands, and what the student is looking for. आजकल जब बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी के रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचने के बाद आप काउंसलर
वहाँ जो बैठे रहते हैं, शिक्षा क्यों जरूरी है, तो 7 उत्तर मिलते हैं। देयर आर 7 आंसर्स विच दे गिव। पहला, शिक्षा इसलिए जरूरी है ताकि रोजगार के नए अवसर सृजित हो सके। दूसरा, ताकि हमारा नौजवान ज़्यादा पैसा कमा सके। तीसरा, ताकि हमारी नई पीढ़ी अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सके। चौथा, ताकि नई पीढ़ी खुशहाल एवं समृद्ध जिंदगी जी सके। पांचवा, ताकि हमारा नौजवान एक आधुनिक समाज में रह सके। छठा, ताकि नौजवान समाज में औरों से ज़्यादा ताकतवर इंपावर हो सके। और सातवां, ताकि युवा पीढ़ी अपने ज्ञान का सही उपयोग करके समाज को वापस लौटाए। अब इन 7 उत्तरों को ध्यान में रखकर एक सही सिचुएशन के बारे में जरा सोचिए। मैं एक घटना का जिक्र करूंगा। बेंगलोर से कोई 70 किलोमीटर दूर एक गांव है चिलुकवाड़ी। उस गांव के एक नागरिक हैं, निवासी हैं, 38 वर्षीय, उनका नाम है शिवन्ना। कभी कॉलेज नहीं गए, दिव्यांग हैं, और शिवन्ना आजकल कंप्यूटर को कन्नड़ बोलना सिखा रहे हैं। शिवन्ना को चैट जीपीटी के बारे में कुछ पता नहीं है। शिवन्ना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना भी नहीं है। उनके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है, 4G का कनेक्शन है, और वह एक डेटा कंपनी का ऐप इस्तेमाल करके शुद्ध कन्नड़ भाषा को रिकॉर्ड करते हैं और वॉइस डेटा उनके कंपनी के डेटा अकाउंट में चल जाता है। शाम को उनके बैंक अकाउंट में अच्छा पैसा आ जाता है। 3 से 4 घंटे मोबाइल फ़ोन में कन्नड़ शब्दों को बोलने के बाद उन्हें लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये मिलते हैं। शिवन्ना को यह भी नहीं पता है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कटिंग एज टूल्स के लिए काम कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, जो एक कैजुअल लेबर था, टेक्नोलॉजी ने कितना इंपावर कर दिया उस व्यक्ति को। वह मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना किसी ट्रेनिंग के अपना योगदान दे रहे हैं। पहले शायद इसके लिए एजुकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती, डिग्री मांगी जाती, और ख़ास तौर से सरकार में तो बिना उसके सुनवाई नहीं होती, और तब जाकर कंपटीशन से यह काम मिल पाता उन्हें। लेकिन टेक्नोलॉजी ने नए प्रकार की सोशल इक्वलिटी को देश में जन्म दिया है। अब अगर हम उन 7 उत्तरों को दोबारा देखेंगे तो लगेगा कि वाकई में जिस तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिस प्रकार इकॉनमी की डिमांड बदल रही है, और दुनिया के जिस तीसरे इकोनॉमिक पावर हाउस के लक्ष्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसमें लॉन्ग रन के लिए 7 चीज़ें और जोड़नी पड़ेंगी। और मुझे अगर कोई कहेगा कि जोड़िए, तो मैं निम्नलिखित 7 चीज़ों को जोड़ूंगा। पहला, शिक्षा इसलिए जरूरी है ताकि हम अच्छे इंसानों का फ्लूइड और प्रोडक्टिव नेटवर्क तैयार कर सकें और टीम वर्क की तरह काम कर सकें। दूसरा, ताकि हम हर नौजवान को क्रिएटिव बना सकें। तीसरा, ताकि वह लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल सीख सके। चौथा, ताकि नौजवान प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख सके और भविष्य की चुनौतियों का सामना हिम्मत से कर सके। पांचवा, ताकि उनके भीतर मॉरल लीडरशिप विकसित हो सके। छठवां, ताकि नौजवान पीढ़ी में क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग, इमेजिनेशन विकसित हो सके। और सातवां, ताकि सिर्फ बाहरी ज्ञान ही नहीं बल्कि हमारी भीतर की आंखें, इनर आइज, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सहायक हो सके। मैं समझता हूँ यह 7 उद्देश्य पहले के और उसके बाद ये 7 जो उद्देश्य हमने अभी बताया है, अगर इसका मिश्रण करके हम व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं तो ये एक होलिस्टिक एजुकेशन की बात हो सकती है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना इसीलिए हुई थी। ये स्टूडेंट को मात्र वर्तमान में आवश्यक स्किल के लिए ही नहीं तैयार करेगी, बल्कि जीवन के नए रास्ते दिखाएगी, नई दिशा तय करने में मदद करेगी तथा नई समस्याओं के लिए नए उपाय, फ्यूचर स्किल सीखने और परिवर्तन के साथ स्वयं को एडजस्ट करने में भी मदद करेगी। अगर कोई नौजवान 3 साल 4 साल बाद यूनिवर्सिटी के
कंप्यूटर साइंस विभाग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होकर के क्लर्क का फॉर्म भर रहा है, तब हमें सोचना पड़ेगा कि क्लास 4 की नौकरी के लिए हम ये पढ़ा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया है। यूनिवर्सिटी को कई साल मिलते हैं कि वह बच्चे के, नौजवान के मन में एक नई चेतना, नई दिशा की खोज, नए इन्वेंशन की आग उसके भीतर जला सके। लेकिन अगर वह यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री दे रही है तो वो गुरुकुल फिर नहीं है जिससे होकर जिंदगी की समृद्धि का रास्ता गुजरता है। थॉमस अल्वा एडिसन, आप में से अनेक लोगों ने नाम सुना होगा, कभी कॉलेज नहीं गए, लेकिन उनके नाम से आज 1000 से ज़्यादा पेटेंट हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन 10 साल की उम्र के बाद कभी स्कूल नहीं गए। वॉल्ट डिज्नी हाई स्कूल ड्रॉप आउट। राइट ब्रदर्स, माइकल डेन, स्टीव जॉब्स, ये सब कॉलेज ड्रॉप आउट थे। इनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन सृजनात्मक शक्ति थी, नई दिशा, नया इन्वेंट करने का जज्बा, जो आज सभी यूनिवर्सिटीज़ को युवा पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता है। और वास्तव में अगर आप पुरातन काल से देखें तो शिक्षा की अनेक परिभाषा है। अपने अपने ढंग से देश और दुनिया के विद्वानों ने उसकी परिभाषा बनाई है। मेरी बड़ी सीधी और सिंपल परिभाषा है कि है क्या शिक्षा है, तो इट्स ए जर्नी ऑफ सेल्फ। ये एक व्यक्तिगत यात्रा है और उसके हम आगे अगर सोचते हैं तो इट्स जर्नी ऑफ इनर सेल्फ। अगर विश्वविद्यालय विद्यार्थी की अंतर्ध्वनि की पहचान करा दे, मुझे लगता है कि ये विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा काम है। हमने भी विज्ञान पढ़ा, गणित पढ़ी, इंजीनियरिंग पढ़ी, तो गणित पढ़ने वाले को अगर वो कोई बात कहता है तो उसे प्रमाणित करने के लिए उदाहरण भी देने होते हैं। अगर मैं 2 उदाहरण दूं तो पहला मैं गांधी जी का दूंगा। 8 साल के थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, राजा सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखने गए थे। नाटक से इतने प्रभावित हुए कि घर आए और शीशे के सामने खड़े होकर उस के डायलॉग्स को कई दिनों तक बोलते रहे। और तब 8 वर्ष का बालक प्रतिज्ञा करता है कि चाहे जितनी दुश्वारियां आएंगी, जितनी कठिनाइयां आएंगी, सत्य से कभी विमुख नहीं होंगे। गांधी जी ने बड़े बड़े काम किए, आप सब जानते हैं, उसमें मैं समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। आज़ादी से लेकर के अस्पृश्यता हटाना, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, लेकिन सबके मूल में सत्य था। तो उन्होंने अंतर्ध्वनि पहचानी और उस पर जीवन भर अमिट रहे, चाहे जितनी तकलीफ उठानी पड़े। दूसरा नाम मैं लूंगा कबीरदास का। उन्होंने भी अपनी अंतर्ध्वनि पहचान ली कि हमारी अंतर्ध्वनि ईश्वर है। और आपको मालूम है कबीरदास अपना नाम लिखना नहीं जानते थे। 1000 से ज़्यादा PhD अभी तक कबीरदास पर हो चुकी है। तीसरा नाम मैं जोड़ देता हूं क्योंकि यहाँ विज्ञान और गणित पढ़ाई जाती है। रामानुजम का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना है। हाई स्कूल पास थे, इंटरमीडिएट पास नहीं किए और देश के सबसे बड़े गणितज्ञ बने। तो मुझे लगता है कि अब इस यूनिवर्सिटी को ये सोचना चाहिए कि इनर सेल्फ बच्चा हमारा पहचाने, और पहचानने के बाद क्या होगा, केवल पहचानने से तो काम होगा नहीं, तो फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और गांधी जी एक बात कहते थे कि जो आप किताब में पढ़ते हो, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते हो, वो जरा अंदर कम जाता है। हाथों का प्रयोग जो करते हो वो जल्दी समझ में आता है। तो एक तो अंतर्ध्वनि पहचानना, उस रास्ते पर मेहनत से चलना, और फिर तीसरा हाथों का प्रयोग करना। अब दुनिया में जितने बड़े आविष्कार हुए, मैंने अभी नाम कुछ गिनाए हैं आपको, 1-2 और गिनाता हूँ। सर आइजैक न्यूटन बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, हाथों के प्रयोग में माहिर थे, और इसलिए थियरी ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार वो कर सके। आइंस्टाइन द ग्रेट, वो फिजिक्स में PhD किए थे, लेकिन फिजिक्स में PhD किए थे इसलिए थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार नहीं हुआ। और थियरी ऑफ रिलेटिविटी मुझे लगता है कि जो लोग पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, बहुत कम लोग ठीक ढंग से समझ पाते हैं। तो फिजिक्स में PhD करने के बाद उनके पिताजी बहुत बीमार हो गए। वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉप चलाते थे और उनको बैठना पड़ा उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉप पर। और कभी आइंस्टाइन ने ये नहीं कहा कि साहब मैंने फिजिक्स में PhD की है,
मैं दुकान पर नहीं बैठूंगा। वहां बैठ करके हाथों का प्रयोग प्रारंभ किया और पूरी दुनिया को पहला ऑटोमेटिक कैमरा देने वाले का नाम आइंस्टाइन है, ऑटोमेटिक फ्रिज देने वाले व्यक्ति का नाम आइंस्टाइन है, और थियरी ऑफ रिलेटिविटी तो आप सब देख ही रहे हैं। अभी मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल, जिस कोरोना का भी जिक्र आपके कुलपति जी कर रहे थे, अगर जेनेटिक्स का आविष्कार न हुआ होता तो कोरोना की रफ्तार रुकने वाली नहीं थी। पहले क्या होता था देश में, दुनिया में, एंटीवायरस लगाते थे, कुछ देर तक इन्फेक्शन को रोकता था, लेकिन पूर्णतः इलाज नहीं था। और जिस व्यक्ति ने दुनिया को जेनेटिक्स का आविष्कार किया वो बॉटनी पढ़ा था, लेकिन केवल बॉटनी ही नहीं जानता था, वो रोज अपने गार्डन में हजारों पौधे लगाया था, अपने हाथों से पानी देता था, किस तरह के फूल खिल रहे हैं, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है वो नित्य देखता था, गणना में भी माहिर था। उसने जेनेटिक्स का आविष्कार किया मेंडल ने, जिसने कोरोना की रफ्तार रोक दी और पूरी मानवता को बचा लिया। तो तीसरी बात, हाथों का प्रयोग, मैंने कहा यह बड़ा जरूरी है। अंतर्ध्वनि पहचानिए, उस रास्ते पर मेहनत से आगे बढ़िए और हाथों का प्रयोग करिए। और चौथी बात, छोटी छोटी जो समस्याएं आसपास की, दुनिया बदल देंगे ये स्वप्न लेकर के चलने की भी जरूरत नहीं है। यहां जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, इसके आसपास की जो समस्याएं, खासतौर से जम्मू कश्मीर की जो समस्याएं, बर्फबारी बहुत इलाकों में होती है, हर साल सड़क पर सरकार पता नहीं कितना पैसा व्यय कर रही है। क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद कर सकते हैं, 4 बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी के मिलकर के? हमारे पास मटेरियल की कमी है, पहाड़ टूटते जा रहे हैं। जिस मटेरियल का इस्तेमाल हम सड़क बनाने में कर रहे हैं, कैसे उसी मटेरियल से दोबारा हम सड़क बना सकते हैं? क्या इसकी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे और यहाँ के टीचर्स निकाल सकते हैं? बिना टावर के सिग्नल हम कैसे भेज सकते हैं? क्या इस पर हम काम कर सकते हैं? तो कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करना, छोटी छोटी समस्याओं पर काम करना, समाज को समाधान देना, ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। मैं समझता हूं तब इस यूनिवर्सिटी, अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम आपको वाइस चांसलर साहब ने लिया, मैं समझता हूं कि उनको सही श्रद्धांजलि हम तब दे पाएंगे। और जो मैंने कहा कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनना चाहते हैं, जब हम सोने की चिड़िया थे तो इसलिए नहीं थे कि हमारे यहाँ सोने के भंडार थे या सोने की खानी थी। हमारे जो इंस्टीट्यूशन थे, शिक्षा की जो संस्थाएं थी, वो दुनिया में सबसे बेहतर थी। जिसका नाम आप लीजिए, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, 20 नाम मैं ले सकता हूं। और वहां जो काम हो रहा था, जो प्रोडक्ट हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे, दुनिया में सबसे बेहतर बनाते थे। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर आइजैक न्यूटन भाषण दे रहे हैं, विज्ञान के पास कोई साधन नहीं है, नेविगेशन माने समुद्री जहाज पानी में कैसे जाएंगे। उस समय भारत के समुद्री जहाज अर्थमेटिक के आधार, लॉगरिथम के आधार पर हमारे लोगों ने यंत्र बनाए थे। सुदूर अफ्रीका के आगे सक्रोता एक जगह है, वहां जाइए, अभी भी संस्कृत और पाली में लिखे हुए श्लोक आपको मिल जाएंगे। भारतीय नाविक वहां तक जाते थे और केवल खाली जहाज लेकर नहीं जाते थे। दुनिया का सबसे अच्छा इग्नॉट स्टील हिंदुस्तान में बनता था। यहां के बने हुए प्रोडक्ट हम ले जाते थे और दुनिया के दूसरे देशों से सोना हम ले आते थे, तब हम सोने की चिड़िया हुए थे। और एक इतिहास की बात आपको बताता हूं, सिकंदर और पुरराज पोरस का नाम आप सबने सुना है। बड़ी दोस्ती हुई दोनों में। उस दोस्ती का कारण आप में से किसी को पता है? जब युद्ध के लिए सिकंदर आए तो मगध की सेना से युद्ध करने के पहले उन्होंने कुछ गुप्तचर भेजे थे। गुप्तचर यहां से लौट करके गए और सिकंदर को रिपोर्ट दे रहे हैं कि साहब, मगध की सेना जिस तैयारी में है, आप युद्ध नहीं कर पाएंगे। हाथी घोड़े, हजारों हाथी घोड़ों पर सैनिक तैयार हैं, पैदल सेना पूरे जोश के साथ तलवार लिए आपका इंतजार कर रही है। सिकंदर ने पैर वापस खींच लिया, वापस चले गए। वापस जाते समय पोरस से उनकी मुलाकात हुई और दोस्ती का कारण भी इग्नॉट स्टील बना। तब वो उसी से दुनिया की सबसे अच्छी तलवार भारत के स्टील से बनती थी। फिर तब दोबारा सिकंदर आते हैं
और वापस युद्ध होता है। मुझे लगता है कि उस दिशा में एनईपी ने हमको फिर से एक अवसर दिया है, प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया है। मुझे लगता है कि उस दिशा में हमको सोचने की जरूरत है और इस बात को स्मरण रखने की जरूरत है कि सिर्फ तीसरी आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि इस देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष और उसके आगे भी इस देश की प्रगति सुनिश्चित करने का और मानव समाज के उत्थान का आज पूरा का पूरा दारोमदार शिक्षण संस्थानों के ऊपर निर्भर करता है। सन 2023 की जो व्यवस्था है उसमें 2024 में परिवर्तन लाना, ये जिम्मेदारी भी शिक्षण संस्थाओं की है। और इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, युवा वर्ग का मतलब है वह शक्ति जो दुनिया को आगे ले जा सके, जैसा समाज उसे मिला है उसमें बड़ा बदलाव कर सके और उसे बेहतर बना सके। और ये तभी संभव है जब हमारी यूनिवर्सिटीज युवा शक्ति, युवा ऊर्जा को क्रिएटिव मोड़ देना शुरू करेंगी। साथियों, इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन 19 अगस्त 2004 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किया था। वो कहते थे कि मेरी सबसे बड़ी पहचान ये है कि मैं एक प्रोफेसर और एक साइंटिस्ट हूँ। वो हमेशा कहते थे कि यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो रिसर्च, इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन और इनलाइटेंड सिटीजन तैयार करे। इफ यू लुक एट द ग्लोबल डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स, इंडिया हैज इमर्ज्ड as the fastest growing economy among top 5 countries. There has been a tectonic shift from what we were producing as an agriculture society to now as a knowledge society. The journey from raw materials to knowledge products has been phenomenal. That's why I strongly believe innovation, research and new inventions will become the soul and integral pillar of universities. We are on the road to become a global manufacturing hub by 2030, and more than 40 million workers will be part of this sector, directly contributing to the Indian economy. In the next 5 years, the manufacturing will shift towards automation, which means innovation and digital transformation will play a significant role. 40% of the employees will require reskilling and 60% will need to upskill to be market ready. This need of the market will also redefine industry-academic relationship. Similarly, service sector, in which we had witnessed 42% growth and total export of $254 billion in 21-22, is expected to reach $400 billion by the end of this financial year. Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India has already formulated action plan for 12 identified champion sectors that include ITs, tourism, legal services, communication services, environment and education sector. I am confident by 2030, India will become unique emerging services market in the world with better skills and competitive advantage created by universities like our university. Now we are not looking at the incremental changes, but quantum jump. The vibrant demography, technology-driven system, and initiatives like Agni that will help commercialize the innovative technologies, we will be able to share the expertise and resource with the world. Today, we have won 15 unicorns with a cumulative valuation of over $350 billion. We are now aiming to go beyond the unicorn and gradually move to create decorns, with each one having valuation of more than $10 billion. Currently, we have 99,000 startups, and the funding in new startups has gone up by 15 times. We are living in the world of surprises, where the only constant in life is change. But the biggest challenge is to prepare students for the jobs that don't yet exist. We need to provide them with the skills that will remain relevant for the rest of their working lives.
Education needs to provide them with life and career skills that will complement the growing pace of change. Today, algorithm is more powerful than any other technology that existed in the history of mankind. Big data and machine learning technology knows a student better than a teacher and even their parents. But at the same time, it has triggered a debate whether we need to have some control of our life and the future. In this context, NEP 2020 offers the key to unlock the vast potential of basic knowledge, applied skills, critical thinking, collaboration, leadership, creativity, innovation, lifelong learning, and career skills like flexibility, adaptability, and social and cross-cultural skills. Jammu University is taking a different approach to preparing students for future jobs through Design Your Degree program. Instead of trying to predict which jobs will change, the education should help the students take more ownership of their own career paths. Students should be empowered to make the changes they want in their careers rather than waiting to react to changes imposed on them. साथियों, मैंने इसलिए आप सबसे कहा कि हमें अपने रूट्स की तरफ जाना होगा। सा विद्या या विमुक्त है, यहीं से मैंने बात शुरू की थी। ये कोई साधारण श्लोक नहीं है, ये इंगित करता है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन, क्रिएटिविटी स्किल्स, लाइफ एंड करियर स्किल्स। हमारे एजुकेशन का, हमारी सोसाइटी का पहले ये अहम हिस्सा हुआ करता था। हमारा समाज कल्पना उन्मुख समाज था, क्योंकि कल्पना से ही सृजन हो सकता है। नए के जन्म, नई खोज का अगर और कोई दूसरा उपाय नहीं है। चरक, सुश्रुत, वराह मिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त का सृजन कल्पना की जमीन से ही हुआ था। अगर हम एक विद्यार्थी को शिक्षा देते हैं तो सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि वह कुछ न कुछ प्रोडक्टिव करे, कुछ नया सोचे, ताकि आने वाले कल में ऐसी चीज़ें पैदा हो सकें जो बीते कल में नहीं थी। कार्ल बेंज के दिमाग में जब मोटर कार बनाने का विचार आया तो डिजाइन एक पेपर पर उसने बनाया। पेपर तो खरीद लिया, डिजाइन भी बना लिया, लेकिन शाम को उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। एक्सपेरिमेंट करना तो बहुत दूर की बात थी। जिनके पास गया पैसा मांगने, डिजाइन दिखाया, लोग साफ तौर पर मना करते थे और कहते थे ये कहाँ पागल आ गया मेरे पास। हम ठीक ठाक घोड़ा गाड़ी से चल रहे थे, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बिना घोड़े और बिना बैल की गाड़ी कैसे चलेगी। बेंज जिनसे भी मिला सबने उसे पागल घोषित कर दिया, लेकिन आखिर में एक आदमी मिल गया जिसने कहा कि चलो तुम्हारे डिजाइन पर रिस्क लगा कर देखते हैं। हालांकि उसने ये भी कहा ये काल्पनिक है, मैं जानता हूं कि सफल नहीं होगा, लेकिन लो तुम्हें मैं पैसा दे देता हूं। और उस पागलपन से बिना घोड़े और बैल की गाड़ी का जन्म हो गया दुनिया में। एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया के 70% से ज़्यादा इन्वेंशंस नॉन प्रोफेशनल्स ने किए हैं, और यह तथ्य इस बात को साबित करता है कि कल्पना, सृजन की क्षमता और नए खोज सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी में नहीं होते। करिकुलम से आज तक कभी भी कल्पना का जन्म नहीं हुआ, वह तो सिर्फ बेसिक स्किल सीखने का माध्यम भर है। कल्पना का जन्म क्लासरूम के बाहर होता है, और आज मैं देख रहा हूँ कैंपस के बाहर नए खोज की भूख हमारे युवाओं में बढ़ती जा रही है। अनेक ऐसे नौजवान होनहार बच्चे, मैं रोज मिलता हूँ उनसे, जिनका मन नई दिशा की खोज में डूबा हुआ है। अगर हमारे विश्वविद्यालय और खासतौर से हमारा यह विश्वविद्यालय उन्हें प्रेरित करता है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे युवाओं में सामर्थ्य है, वो विकसित भारत में अपना योगदान देना चाहते हैं, और सभी टीचर से मैं निवेदन करूंगा कि इस अप्रोच के साथ हमारे युवाओं को बदलने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाइए, तभी जय माता दी कहना सार्थक होगा और माता का आशीर्वाद भी हमें तभी मिलेगा। उन्हें भी स्टूडेंट्स के साथ सीखना होगा, खुद को भी, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है।
अभी जो टेक्नोलॉजी रिलेवेंट है, कल वो रिलेवेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पर विश्वास करना बड़ा कठिन है। और उन्हें भी मैं टीचर से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूँ, माननीय वाइस चांसलर साहब से, उन्हें भी सीखना होगा ताकि टीचर्स एवं स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी, उनकी मिलीजुली शक्ति नए जम्मू कश्मीर का और नए भारत का निर्माण करे। और जो सपना है हम सबका विकसित भारत में, इस विश्वविद्यालय के हमारे युवा विद्यार्थियों का भी योगदान किसी से कम न हो। अंत में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ और माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हुआ कि आने वाले समय में देश की जरूरतों को पूरा करने में, भारत के पुनर्निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में आपका पूरा योगदान हो। इतनी ही बात कह के आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।